Dear students, today we had to learn about the chapter number 1 of Maths 1, that is sets. Now first of all, see what is meant by set. You know that there are many groups, many collection of things or objects. The collection of objects and things is called as set. But that collection should be a particular collection or it should be well defined collection or group. Then such a group or collection is called as sets. You see many groups or collection in your daily lives. Group of books or collection of books, collection of numbers, keys, flowers, birds, chairs, peoples, and many materials. If they are well defined, then such collection is called as set. Now see what examples are given in our books. You can see that there is a flower, group of flowers, bunch of keys, flock of birds, books, collection of numbers. These groups represent the set. Again see some examples. Here days of week, months in a year, brave children in the class, first 10 containing numbers, strong fort of Maharashtra plants in our solar system. Some of the examples represent the set and some of the examples do not represent the set. Now see why. Days of week is a set, months in a year, it is also the set. Brave children in the class, this group or this type of brave children in the class cannot represent the set because there is a comparison. When there is comparison, there should not be no set. First 10 counting numbers, it represent a set. Strong force of Maharashtra, again there is a comparison. Strong fort, कौन सा फोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है हम नहीं बता सकते. तो there is a strong force of Maharashtra is not an example of set. Planets in our solar system, it should be a set. Now see, in mathematics, the definition of the set, a well-defined or particular collection of objects or things is called a set. Means चीज़ों के, ऑब्जेक्ट्स के, थिंग्स के पर्टिकुलर और वेल डिफाइंड कलेक्शन को, ग्रुप को हम सेट कहते हैं. देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द सेट. इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन that collection is called as set. Now sets are generally named or represented by capital letters A, B, C, D, etc. Objects in a set are members or elements of sets. Sets को हम generally A, B, C, D वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट. यानी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स, जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं, उनको हम सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC एक्सेट्रा. हम उनको स्मॉल लेटर्स ABC वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, then it is denoted by X belongs to
A. This symbol is called as belongs to or element of set. If X is not an element of set A, then it can be denoted by X does not belongs to A. तो ये सिंबल को आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि X is an element of A या X belongs to A और set A. इस सिंबल को आप पढ़ेंगे X does not belongs to A और X is not an element of A. Now see the methods of writing sets. There are two methods of writing sets. One is listing method or roster method and another is rule method or set builder form. Now see listing method. In this method, elements of a set are written in curly brackets and each is separated by commas. मतलब लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में मेहराबी कौस में लिखते हैं और उनको कॉमा से अलग करते चले जाते हैं. अगेन इन दिस मेथड ईच एलिमेंट इज written only once and order of element is not important. हम सेट में एक एलिमेंट को एक ही मर्तबा लिखते हैं, भले ही वो कितने भी मर्तबा आ रहा हो, कितने भी टाइम्स आ रहा हो, लेकिन आप उसको एक ही टाइम लिखेंगे, एक ही मर्तबा लिखेंगे वंस. और इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं आप. इट इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ लिस्टिंग मेथड. Set A is equals to 2, 4, 6, 8, 10. You know that see that set A is equals to curly bracket है, नंबर दिए है और इसको कॉमा से अलग किया गया है. तो इस तरह से हम लिस्टिंग मेथड से सेट को लिखते हैं. या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं set A is equals to 4, 2, 10, 8, 6. सेम एलिमेंट है, यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, तरतीब से कोई लेना देना नहीं है. आप सेट को इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 9 क्लास है. 9 क्लास में स्टूडेंट्स कहीं भी बैठे, कोई सामने बैठे, कोई पीछे बैठे, जो मीन्स जो आज सामने बैठा था वो स्टूडेंट पीछे जाके बैठ जाता है, तो उससे आपके 9 क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मीन्स ऑर्डर से हमारी 9 क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे स्टूडेंट जितने हैं उतने ही हैं. ऐसी सेट्स में भी एलिमेंट के ऑर्डर से सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप एलिमेंट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं. लिस्टिंग मेथड से हमने सेट्स ऑफ नंबर को लिखा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ पे. ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. सेट ऑफ होल नंबर्स को लिखे हमने यहाँ W इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. इट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में -1, -2 एंड सो ऑन. इस तरह से हम लिस्टिंग मेथड से नंबर के सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ सी अनदर मेथड विच इज़ कॉल्ड एज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. What is the property of this method? In this method we do not write the elements. We only show their properties. We only define their properties. In this method we write the general element using variables followed by a vertical line or colon and write the property of the variable. यानी इस मेथड में हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, जैसे वेरिएबल ले लेते हैं x, a, b, y, x वगैरह, और उसको लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस मेथड में. जैसे फॉर एग्जांपल सेट a is the set of all x
such that x belongs to natural number and x is greater than 1 and x is less than 10। ये सेट को हमने रूल मेथड से या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलिमेंट को नहीं लिखा है बल्कि एक जनरल एलिमेंट को लिखा है x को, और उसकी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी बयान कर दी है। प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो 1 और 10 के बीच का नंबर है। तो ये होगी इसकी यहाँ प्रॉपर्टी। इट इज़ रीड एज, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, सेट A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यहाँ समझाया था मैं आपको फिर एक बार, सेट A इज़ द सेट ऑफ ऑल x। इस लाइन को या सेमीकोलन वगैरह को हम सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू, आप n बोलिए या आप इसको x इज़ अ नेचुरल नंबर बोलिए, कॉमा यहाँ पर आप इसको x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 बोल सकते, या x इज़ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल, सेट ऑफ रैशनल नंबर q। आपने देखे होंगे मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर को लिस्टिंग मेथड से नहीं बताया, क्योंकि इसको लिस्टिंग मेथड से या रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इसको रूल मेथड से बता रहे हैं या सेट बिल्डर फॉर्म से इसको डिफाइन कर रहे हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज, आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताया था कि p और q अगर इंटीजर्स है तो, और साथ में q शुड नॉट बी अगर 0 है तो p अपॉन q जैसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो वही डेफिनेशन ये है, सेट q इज़ द सेट ऑफ ऑल p अपॉन q सच दैट p q आर इंटीजर्स या p q बिलोंग्स टू i एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 या q इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर। इस सेट को मतलब हम इस तरह रीड कर सकते हैं, q इज़ द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q such that p and q are integers and q is a non-zero number। तो यहाँ पर हमने रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म से कुछ सेट को लिखकर आपको बताए हैं। नाउ सी मिक्स्ड एग्जांपल अबाउट लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। दोनों मेथड के लिए हमें मिक्स्ड एग्जांपल यहाँ देखेंगे, मखलूत मिसालें देखेंगे यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 1, ये मैंने इसको यहाँ रूल मेथड से लिख के बताया आपको। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, सेट A इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। ये रूल मेथड से लिखा हुआ है। इसको हमको अगर लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, सेट A इज़ इक्वल्स टू D, फिर I, फिर V। I यहाँ आपको डबल या और 3 टाइम्स दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लिस्टिंग मेथड में जब लिखते हैं तो एक ही टाइम उसको काउंट करते हैं। V आ गया, फिर S, फिर O एंड फिर N। तो ये सेट हो गया डिवीजन के अल्फ़ाबेट का या लेटर का सेट। नाउ सी सेट B इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मीन्स अगर हम यहाँ इसको डिफाइन करें तो सपोज करिए आप कि 9 किसका स्क्वायर है, तो आपको समझ में आता है कि 9 3 का भी स्क्वायर होता है, 8 क्लास में आपने पढ़े थे, और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। इसलिए एक्चुअल में अगर हम देखें लिस्टिंग मेथड के हिसाब से तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ये सेट के हिसाब से सेट B इज इक्वल टू 3, -3 मीन्स ये सेट और ये सेट दोनों सेम है। ये रूल मेथड से लिखा है और ये लिस्टिंग मेथड से लिखा है। नाउ सी थर्ड एग्जांपल, C इज द सेट ऑफ ऑल Z such that Z is a multiple of 5, comma Z is less than
30। मतलब C जो है ये ऑल सेट का सेट है और जो Z है वो 5 का मल्टीपल है, यानी 5 के पहाड़े में आने वाला है, 5 के टेबल में आने वाला है। और वो जो नंबर्स है, जितने भी है नंबर्स, वो 30 से छोटे हैं, स्मॉल है। इसको ही हमने लिस्टिंग मेथड्स यहाँ लिखे हैं। C इज इक्वल टू 5, कॉमा 10, कॉमा 15, कॉमा 20, कॉमा 25। आप देख सकते हैं ये 5 के मल्टीपल है सबके सब, यानी 5 के टेबल वाले नंबर है और सबके सब 30 से स्मॉल है। तो मैं समझता हूँ आपको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड समझ में आ गया हो। आइए हम यहाँ बुक में एक एक्टिविटी हमको दी है पेज नंबर 3 पर, वो एक्टिविटी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ आपको दिया है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड और इधर आपको रूल मेथड दिया है। लिस्टिंग मेथड में सेट ए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, उसको रूल मेथड से बताया हुआ है कि सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स। आप ध्यान रखेंगे मैं किस तरह इसको रीड कर रहा हूँ। सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। नाउ सी इन रूल मेथड हमको सेट बी दिया है। सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। पहले मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझा देता हूँ, आपने वैसे 8 क्लास में पढ़े हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिसका अंडर रूट नेचुरल नंबर आता है, या ये बोलिए कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 1, 4, 9, 16, 25 वगैरह वगैरह ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी सेट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का, जो 1 से लेकर 1 to 20 के बीच में है, 1 to 20। तो यहाँ पर सेट बी को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये सेट बी। सबसे पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 1 दिया है। 1 के बाद में यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 9 है, फिर इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो 16 है। 16 के बाद 25 आता है, लेकिन हमको 20 से छोटा चाहिए, इसलिए हमारा ये सेट यहाँ क्लोज हो गया और बी आ गया आपका 1, 4, 9, 16। नाउ सी सेट सी AEIOU। अगर आप गौर से देखें तो ये जो सेट है ये वॉवेल का सेट है। इसको हम रूल मेथड से लिखेंगे। सी इज़ द सेट ऑफ, आप चाहे तो यहाँ एक्स वाई वगैरह ले सकते हैं, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल। हो गया, आप इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको। नाउ सी सेट डी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ कलर इन द रेनबो। मतलब यहाँ पर आपको 7 कलर पूरे आ गए हैं। हालांकि यहाँ बोल रहा है कि डी इज़ द सेट ऑफ ऑल वाई एंड वाई इज़ अ कलर इन द रेनबो। वाई इज़ अ कलर का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही कलर है, यहाँ पूरे 7 कलर के बारे में बताया जा रहा है। तो आप पूरे 7 कलर्स यहाँ लिख लेंगे। 7 कलर लिखने का आसान तरीका यह है कि विब गौर, इसको हम पढ़ते हैं विब गौर, VI इस तरह लिख लीजिए आप, BGYOR 1 2 3 4 5 6 7 विब गौर, और इसको कॉमा लगा देंगे। तो ये बन गया आपका सेट ऑफ कलर इन द Y इज द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम सिंबल में भी दूसरे तरीके से चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट जो आपको लिखना है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है, दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, थर्ड जो है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, एंड फोर्थ जो है वो 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम सुर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ सोल्यूशन है। सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। हमारा क्वेश्चन 1 था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, हमने ये सेट ए लिख दिए, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन था सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो दैट नंबर इज ओनली 2। 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो हम यहाँ इसको सेट बी सपोज कर लेते, तो सेट बी में एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा 2। थर्ड हमारा क्वेश्चन था सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का हमको सेट यहाँ लिखना है, यानी माइनस वाले नंबर पूरे, तो हम उसको सेट सी सपोज कर लेते। क्वेश्चन 3 1 का क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन सी इज इक्वल्स टू -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 4 था 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। इंडियन सरगम में आपको पता है कि जो हम सुर लेते हैं सा रे गामा पा वगैरह, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 में इसका सोल्यूशन आप सपोज करेंगे सेट डी इसको। सेट डी इज इक्वल्स टू सा कॉमा रे कॉमा गा मा पा धा नी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 सुर आ गए। तो ये हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स को लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड से लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स आपको लिखना है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को आपको वर्ड्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, इसको हमको वर्ड में लिखना है। फिर -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। फिर थर्ड में P इज द सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। इस तरह हमको इसको वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट का सोल्यूशन हम उसको इस तरह लिखेंगे वर्ड्स में 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। सेकंड क्वेश्चन उसका सोल्यूशन इस तरह आएगा -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। थर्ड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन इस तरह आएगा सेट P इज द सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड का सोल्यूशन है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1.1 राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। आपको कोई तो भी 2 सेट लिखना है लिस्टिंग मेथड से और रूल मेथड से। अब आप चाहे तो पहले उसको लिस्टिंग मेथड से लिख दीजिए, फिर बाद में वही सेट को आप रूल मेथड से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, इसमें हर स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। मैंने यहाँ अपने तौर पे 2 एग्जाम्पल ली है। क्वेश्चन 3 का यहाँ सोल्यूशन लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेट ए 1 3 5 7 एंड सो ऑन। रूल मेथड में अगर इसको हम लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं सबके सब ऑड नंबर है, सबके सब नेचुरल ऑड नंबर है। तो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल 2 में मैंने बी सेट बी इज इक्वल्स टू ई एन जी एल आई एस एच वगैरह लिया है। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा जो इंग्लिश वर्ड है उसके अल्फ़ाबेट्स है, उसके लेटर्स है। तो सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़, एक्स यहाँ इज़ होना चाहिए था, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश। तो यहाँ हमने लिस्टिंग मेथड से भी और रूल मेथड से भी 2 एग्जाम्पल लिख लिए हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 1.1। व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आपको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड का यूज़ करके ये सेट्स को लिखना है। जैसे आप देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, लेटर्स इन द वर्ड कम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गेन्स। फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एंड
फिफ्थ क्वेश्चन आपका नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो था उसमें हमको इंडियन सोलर सिस्टम के महीनों के नाम लिखने के थे, नेम ऑफ मंथ। तो आप देख सकते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू ये चैत्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, अषध, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, मघ और फाल्गुन। तो ये इंडियन सोलर सिस्टम के नेम हैं हमारे। ये 12 मंथ्स को आपको यहाँ लिखना है सेट ए में। 4 का सेकंड क्वेश्चन में आपको कंप्लीमेंट के लेटर का सेट बनाना था। तो सेट बी हम उसको सपोज करेंगे, सेट बी सी आएगा, फिर ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एन कॉमा टी। इसमें जो लेटर डबल रिपीट हो रहा है मैंने आपको पहले बता दिया, उसको हम डबल नहीं लिखते हैं। हर लेटर को या हर एलिमेंट को हम एक ही बार काउंट करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन हमको लिखना था क्वेश्चन 3 में। तो इसको सपोज करो ये सेट सी है, सेट सी इज इक्वल्स टू, आपको पता है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन 5 है, नोज, ईयर्स, आइज, टंग, स्किन। कॉमा लगाते जाएंगे आप और इस तरह करली ब्रैकेट लगा देंगे, आपका सेट सी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 में हमको प्राइम नंबर्स लिखना थे, नेचुरल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 तो छूट जाएगा, तो हम ये क्वेश्चन 4 को हम सेट डी का नाम देंगे। सेट डी इज इक्वल्स टू 2 पहला नंबर आएगा, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। लेस देन 20 बोला और मोर देन 1 बोला है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था वो नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। 4 का क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कंटिनेंट्स के नाम लिखना है, मतलब बर्रे आज़म जिसको हम बोलते हैं उनके नाम लिखना है आपको। तो यहाँ सेट ई ले लेते हैं इसको हम। सेट ई में एशिया कॉमा अफ्रीका कॉमा यूरोप कॉमा ऑस्ट्रेलिया कॉमा साउथ अमेरिका कॉमा नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारे कंटिनेंट्स है और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th में हमको कंटिनेंट्स के नेम लिखना है, मीन्स बर्रे आज़म के नाम लिखना है आपको यहाँ। तो सेट ई इज इक्वल्स टू यहाँ एशिया कॉमा अफ्रीका कॉमा यूरोप कॉमा ऑस्ट्रेलिया कॉमा एंटार्क्टिका कॉमा साउथ अमेरिका कॉमा नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ये 7 कंटिनेंट्स बर्रे आज़म का ये सेट हो गया ई। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। हमको यहाँ पर जितने सेट दिए सबको रूल मेथड से लिखना है। जैसा आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपका ए में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर सब। तो इसको 2-3 तरीके से हम लिख सकते हैं। आप सिंबल का यूज़ करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंबल में इसको लिखकर आपको मैं बताता हूँ। बी में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 है। तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है और सबके सब ये 49 या 50 से छोटे हैं। सी में ये SMILE, ये स्माइल जो वर्ड है उसके लेटर्स है। डी में ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह है। तो आप देख सकते हैं ये डे ऑफ अ वीक है। और 5वां जो आपका क्वेश्चन है इसमें एक्स में, सेट एक्स में AET है। तो ये जो वर्ड हमारा यहाँ बनेगा 8 की ये लेटर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन था 1, 4, 9, 16 वगैरह वगैरह को हमको रूल मेथड से लिखने का था। तो हमने यहाँ लिखे सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर कॉमा एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये यहाँ पे ये लेंगे आप कि ये n की जगह आप 1 रखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक।
जैसे ही आप इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखे 3 का स्क्वायर, 4 रखे 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह हम रूल मेथड से उस सेट को लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका मल्टीपल ऑफ 6 लिखना था हमको, लेस देन 50 या 49। तो ये सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 6, कॉमा दी हमने यहाँ, y इज़ लेस देन 50। मतलब ये सेट बी जो है इसमें आपको 6 के टेबल के नंबर दिए थे, तो आपने उसको इस तरह लिख दिए मल्टीपल ऑफ 6 है करके, और सब के सब जो है वो 50 से या 49 से छोटे हैं। थर्ड क्वेश्चन था आपका स्माइल जो लेटर है उसके, स्माइल जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट हमको लिखने का था यहाँ। तो C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 का आंसर यहाँ, उसका सॉल्यूशन, हमको दिनों के नाम दिए हुए थे, नेम ऑफ डेज दिए थे, तो उसको हम रूल मेथड से इस तरह लिखेंगे कि D इज़ द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज़ अ डे ऑफ अ वीक। मतलब y इज़ अ डे ऑफ अ वीक, मतलब यहाँ पर पूरे दिनों के नाम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, यहाँ पर हम इसको सेट ई वगैरह नाम दे सकते हैं। सेट ई इज़ द सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज़ अ लेटर इन द वर्ड ईट भी ले सकते हैं आप यहाँ, और 8 वगैरह भी वर्ड आप ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सेट्स को, जो सेट हमको लिस्टिंग मेथड से दिया था उसको हमने रूल मेथड से लिख लिए। तो यहाँ हमारी ये प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट हो गई है।